بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ پڑھو اے نبی اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا۔ خلق الانسان من علق۔ جمے ہوئے خون کے ایک لوتھڑے سے انسان کی تخلیق کی۔ اقرأ وربک الاکرم۔ پڑھو اور تمہارا رب بڑا کریم ہے، الذی علم بالقلم۔ جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا۔ افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ معاشرے کو نیک، صالح اور خوشحال بنانے کے لیے غیر معمولی جذبے سے سرشار، وسیع النظر، خوددار، منکسر المزاج، احساس جواب دہی اور انسان دوست جیسی صلاحیتوں کے حامل چند ایسے ہی افراد کی جماعت کا نام ہے اورنگ آباد سلک ملز ایجوکیشن سوسائٹی۔ شہر اورنگ آباد اپنی ثقافت، تہذیب و تمدن اور اپنے کلچر کے ساتھ ساتھ اپنی تاریخی حیثیت کے حوالے سے نہ صرف ملک کی شان اور پہچان ہے، بلکہ ساری دنیا میں اسے مشہور کپڑے کی صنعت ہمرو کے انقلاب کے لیے بھی جانا جاتا ہے۔ اسلامی تاریخ میں جن بزرگ ہستیوں اور صوفیاء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی زندگی کی احیاء اور ملت کو سر اٹھا کر جینے کا حوصلہ دیا اور انہیں پستی سے نکال کر فلاح و ترقی کی راہ پر گامزن کرنے میں گرا قدر خدمات انجام دی، ان صوفیاء کرام میں سے ان گنت صوفیاء کرام کا شہر اورنگ آباد سے خصوصی تعلق رہا ہے۔ شہر اورنگ آباد نے معاشرے کی اصلاح اور درپیش مسائل کے حل کے لیے ہر دور میں مصلح اور دردمند دلوں کی حامل شخصیات فراہم کی ہے۔ آزادی کے بعد ملک کو تعلیم اور روزگار جیسے بڑے سنگین مسائل کا سامنا تھا۔ ایسے تاریکی کے عالم میں تاریکی کو روشنی سے بدلنے کے لیے اورنگ آباد کے ایک سپوت نے میدان سنبھالا۔ تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم ہو ایک زندہ جاوید روایت کے چراغ، تم کوئی شام کا سورج ہو جو ڈھل جاؤ گے۔ جناب عبدالحمید خان صاحب شہر اورنگ آباد کی مشہور زمانہ پارچہ بافی صنعت ہمرو و مشروع کے ترقی پسند صنعت کار تھے۔ آپ نے اس نازک وقت میں نہ صرف صنعت کو جدیدیت بخشی، بلکہ اس صنعت کو شہر سے باہر ریلوے اسٹیشن کے پار کشادہ علاقے میں منتقل کروا کر ہینڈلوم سے جدید مشینری والے ایک جدید صنعتی علاقے کی بنیاد ڈالی۔ محنت کش طبقے کے لیے رہائشی کالونی بنائی جو کہ آج سلک ملز کالونی کے نام سے جانی جاتی ہے۔ جناب عبدالحمید خان صاحب ایک انقلابی صنعت کار ہونے کے ساتھ ساتھ سلسلہ چشت کے روشن ضمیر صوفی تھے۔ خلق خدا سے محبت آپ کے مزاج کا جزء لافانی تھا۔ آپ نے محسوس کیا کہ صنعتی انقلاب سے روزگار کا مسئلہ کافی حد تک حل ہو چکا، باوجود اس کے ہمارا معاشرہ انسانی ترقی کے انڈیکس میں کافی پسماندہ دکھائی دے رہا تھا۔ ہمارا مستقبل گلی محلوں، بازاروں اور چھوٹی موٹی دکانوں سے پروان چڑھ رہا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں کتابوں اور قلم کے بجائے اوزار، کانچ کی گولیاں اور بے ہنری دکھائی دے رہی تھی۔ علم سے محروم قوم کا یہ قیمتی سرمایہ افلاس اور غفلت کی دھول میں گم ہوا جا رہا تھا۔ غربت کی کوکھ سے جنم لینے والی نسل نو جہالت کی آغوش میں پروان چڑھی جا رہی تھی۔ ناخواندگی کی اس کیفیت کے ساتھ خوشحالی اور ترقی کی باتیں سراب کی مانند تھی۔ عبدالحمید خان صاحب کی دوررس نگاہوں نے یہ جان لیا تھا کہ تعلیم ہی کے ذریعے ہم اپنے سماج کو باشعور اور خوشحال بنا سکتے ہیں۔ اس وقت ریلوے اسٹیشن کے علاقے میں دور دور تک تعلیم کے حصول کا کوئی ذریعہ دستیاب نہیں تھا۔
تعلیم کے اس چیلنج کو سنجیدہ اور منظم کوششوں کے ساتھ جواب دینے کے لیے 1962 میں اورنگ آباد سلک ملز ایجوکیشن سوسائٹی کا قیام عمل میں آیا۔ سوسائٹی نے سلسلہ چشت کی برگزیدہ ہستی حضرت معین اللہ شاہ کے نام سے منسوب ایک عصری تعلیم ادارہ معین العلوم پرائمری اسکول کی بنیاد ڈالی۔ تمام ارباب سوسائٹی انسانیت نواز اور خلق خدا سے محبت رکھتے تھے۔ سوسائٹی نے اداری کے اسلوب کو نبھاتے ہوئے ذریعہ تعلیم اردو اور مراٹھی رکھا۔ 59 طلبہ اور 2 اساتذہ کے ساتھ سوسائٹی نے اپنے سفر کا آغاز کیا۔ اورنگ آباد شہر میں معین العلوم اسکول ایک ایسا ہے جہاں پر پورے ٹیچر بھی محنت کے ساتھ پڑھاتے ہیں، بچوں کی طرف توجہ دیتے ہیں، اور بچے جو ہے تو بالکل محنت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں اور اسکول کا نام بھی کما رہے ہیں۔ معین العلوम शाळेच्या बाबतीत माझी 4ही मुलं इथे शिकत आहेत आणि शिक्षणाची क्वालिटी चांगली असल्यामुळे गोरगरिबांच्या माझ्या मुलांच्या जाण्याचा खर्च वाचतो। शाळा जवळ असल्यामुळे घेऊन जाण्याची घेऊन येण्याची जी परेशानी असते ती कमी होते आणि इथं प्रॉपर असल्यामुळे इथल्या लोकांना भरपूर फायदा मिळतो आणि शिक्षणाची क्वालिटी चांगली आहे। मला हेच वाटतं की या शाळेने जी प्रगती केली, येथील शाळेने सिल्क मिल कॉलनीच्या معین العلومच्या शाळेने जे काही विद्यार्थी घडवले त्यापैकी भरपूर असे मोठ्या मोठ्या पदावर कार्यरत आहेत आणि परत अशी एक आशा आहे की इथून पुढं येणारी पिढीसुद्धा चांगल्या पद्धतीने घडेल, कारण इथला स्टाफ जो आहे तो एकदम सुशिक्षित, संस्कारी आणि समजदार असल्यामुळे आणि ती सवय शाळेमुळे त्या मुलांना मिळेल हीच अपेक्षा आहे। اس مخلصانہ کار خیر میں برادران حضرت عبدالمجید خان صاحب، حضرت عبدالرحمن خان صاحب اور حضرت محمد یعقوب مومن صاحب، ان تمام نے ہر ممکنہ تعاون پیش کیا اور تاحیات ادارے کے سرپرست کی حیثیت سے اعانت کی۔ ان حضرات نے ادارے کے لیے نہ صرف زمین اور عمارت کا عطیہ دیا بلکہ ساتھ میں خلوص اور خدمت کا بے مثال جذبہ بھی دیا۔ یہ کہنے میں تعامل نہیں کہ کرۂ ارض پر ایسی ہستیاں کم ہوئی ہیں جنہوں نے ایک ہی عمر میں متنوع علمی، صنفی، ادبی، تہذیبی اور مذہبی مشن کو اس پیمانے پر فروغ دینے کا کام کیا ہو۔ وقت گزرتا گیا، پرائمری کے ساتھ پری پرائمری، ہائی اسکول اور جونیئر کالج آف آرٹس فار گرلز کا بھی قیام عمل میں آیا۔ الحمدللہ معین العلوم ہائی اسکول جو کے جی سے لے کر ہائی اسکول ہی نہیں بلکہ جونیئر کالج تک ترقی کر گیا ہے۔ 1962 کا یہ ادارہ الحمدللہ بہت اچھی بڑی رفتار سے ترقی کر رہا ہے۔ صرف یہ مسلمانوں کا ادارہ نہیں ہے بلکہ تمام ہی مذاہب کے لوگ اس کے اندر یہاں شریک ہیں۔ تمام مذاہب کے طلبہ اس میں پڑھتے ہیں کہ دونوں میڈیم ہے، اردو بھی ہے اور مراٹھی بھی۔ اس کو سیمی انگلش بھی اب الحمدللہ کیا گیا ہے اور جونیئر کالج تک ترقی کر رہی ہے۔ انتظامیہ بہت فعال ہے ماشاءاللہ سے اور ہر طرح سے اس کا تعاون ہے، اور اسی وجہ سے جو ہے اساتذہ اور طلبہ اور پیرنٹس میں بھی جو ایک طرح کی یکجہتی اور ایک طرح سے جو ہے یگانگت ہے، اور اس بات کی کوشش ہوتی ہے کہ اس ادارے سے زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے بچے نکلے تاکہ وہ اس قوم ملت کی ترقی کا جو ہے کام کریں۔ میں اس ادارے کے سلسلے میں کچھ کہنا، دراصل سورج کو چراغ دکھانے کی مترادف ہے، اس لیے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دین دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ اس سے امت مسلمہ بھی اور تمام انسانوں کو بھی فیض پہنچے۔ اللہ کا شکر احسان ہے، اللہ اس کی حفاظت فرمائے اور اس پر اپنی मेहरबानियां रखे। आमीन। या शाळेचे शिक्षण हे दर्जेदार असल्यामुळे मी पण माझ्या मुलांना व माझ्या बहिणीच्या मुलांना नातेवाईकांना पण या शाळेमध्ये टाकलेले आहे आणि इतर शाळेचे प्राध्यापक, शिक्षकगण हे सर्व स्टाफ चांगला आहे। ते वेळोवेळी पाल्यांना व त्यांच्या मुलाबाबत त्यांना ॲडवाईस देतात आणि त्यांना मार्गदर्शन करतात, मीटिंग घेतात आणि मुलांच्या शिक्षणाबाबत, त्यांच्या राहणीमानाबाबत आम्हाला प्रत्येक वेळेस त्यांच्याकडून मार्गदर्शन भेटते
आणि या शाळेचा दर्जा शिक्षणाचा चांगला आहे. मी माझ्यावरून माझ्या मुलांना पण या शाळेत टाकलेले लोक मला म्हटले की दुसऱ्या शाळेत टाका, इंग्लिशमध्ये टाका, पण मी या शाळेत शिकल्यामुळं मला या शाळेवर गर्व आहे. त्यामुळे मी माझ्या मुलांना पण या शाळेत शिकण्यासाठी टाकलेलं आहे. मोइनुल उलूम स्कूल को आज बड़े ही फ़ख्र के साथ कौमी यकजहती की अलामत कहा जा सकता है. इदारा वहदत में कसरत और कसरत में वहदत की एक नुमाइंदा मिसाल पेश करता है. गर्ज़ मामला तलबा का हो या असातिज़ा का, हिंदू, मुस्लिम व दिगर तमाम अक़ीलियतों से वाबस्ता अफराद इदारे से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, जो कि इस इदारे की हकीकी शान और पहचान है. औरंगाबाद सिल्क मिल सोसायटीच्या मोइनुल उलूम शाळेत मी 1977 पासून ते 2005 पर्यंत म्हणजे जवळजवळ 28-29 वर्ष सर्व्हिस केली आणि इथूनच मी निवृत्त झाले. औरंगाबाद सिल्क मिल सोसायटी ही अतिशय चांगली सोसायटी आहे. यांनी सगळ्या गुरुजनांना आणि संस्थेच्या लोकांना एका धाग्यात बांधले आणि त्यामुळे सगळेजण आपलं कार्य चांगलं करतात. 1977ला जेव्हा मी शाळेत लागले तेव्हा शाळेची संख्या फार कमी होती, इतकी की आजूबाजूला जाऊन त्या परिसरातल्या मुलांना शाळेसाठी बोलवावं लागत होतं. आणि आता शाळेची संख्या एवढी वाढली आहे की प्रवेश बंद म्हणून सांगावं लागतंय. शाळेने खूप प्रगती केली. 77 नंतर ही शाळा आतापर्यंत खूप प्रगतीपथावर आहे, खूप पुढे आहे. औरंगाबाद सिल्क मिल सोसायटीमध्ये मला सुरक्षिततेची हमी वाटली. आम्ही सगळेजण बंधुभावाने राहिलो. सोसायटीने पूर्ण लीगल रिक्वायरमेंट फॉलो करून सर्वांना म्हणजे इतर परिसरातल्या लोकांना विद्यादानाचं कार्य केलं आणि सहकार्य केलं आणि समाजकार्यही केलं. पुढच्या पिढीला हेच सांगायचं आहे, नवीन आलेल्या शिक्षकांना, की शाळेची एवढी प्रगती झालेली आहे, शाळा खूप नावारूपाला आलेली आहे आणि तुम्ही नवीन नवीन तंत्रज्ञान आत्मसात केलेलं आहे. तर त्या दृष्टीने नवीन पिढीसाठी तुमच्या नवीन तंत्रज्ञानाचा अवलंब करून शाळेला आणि सोसायटीला नाव मिळेल असं काहीतरी चांगलं कार्य करावं आणि झटावं, एवढीच अपेक्षा आहे. माझं सौभाग्य आहे की मी अशा चांगल्या सोसायटीमध्ये काम करू शकले. गुल्हाय रंग, रंग से है जीनत चमन. गुल्हाय रंग, रंग से है जीनत चमन. है ज़ौक़ इस चमन को ज़ेब इख्तिलाफ से. मोइनुल उलूम हायस्कूलमध्ये 33 वर्ष सेवा करून 31 मे 2016मध्ये मी निवृत्त झाले. या 33 वर्षात मोइनुल उलूम संस्थेचा आधार ही एकमेव गोष्ट खंबीर होती. शाळेतील प्रत्येक घटकाकडे अगदी काळजीपूर्वक लक्ष देण्याचे महत्त्वाचे कर्तव्य आपली सोसायटी अगदी व्यवस्थितपणे करते. असं म्हणतात, मोत्यांना तर सवय असते विखुरण्याची, पण धाग्याला सवय असते सर्वांना एकत्र बांधून ठेवण्याची. आणि आमच्यासाठी हा धागा म्हणजे औरंगाबाद सिल्क मिल्स एज्युकेशन सोसायटीच होय. माझ्या बाबतीत सांगायचं तर माझ्या दुःखात आणि सुखात प्रत्येक वेळी संस्थेने अगदी आपुलकीने सहभाग घेतला व निरपेक्षपणे मला सदैव सहकार्य केले. शाळेतील माझे सर्व सहकारी, टीचिंग, नॉन टीचिंग स्टाफ यांच्या कारकिर्दीमध्ये शाळेची खूप प्रगती केली. तरी मी माझ्या सर्व सहकारी शिक्षकांना शाळेच्या प्रगतीसाठी ज्ञानरचनावाद, ई लर्निंग यासारख्या आधुनिक पद्धतीचा वापर करून शाळेला प्रगती पथाच्या सर्वोच्च शिखरावर नेण्याच्या शुभेच्छा देते. औरंगाबाद सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी के हर फर्द ने यह अज़्म किया कि वो महरूमी के शिकार हर बच्चे को किताब और कलम फराहम करेगा. सोसाइटी का अहम मौजू शोहरत, दिखावा कभी नहीं रहा, बल्कि उनका अहम मरकज़ी मौजू हमेशा असातिज़ा ही रहे, जो अपने किरदार की बुनियाद पर अपने तलबा का किरदार बनाते हैं. जदीद तरीन तालीम के साथ साथ हमेशा इस बात पर ज़ोर रहा है कि नेक और साले मुआशरे की तश्कील के लिए हमें उम्दा अफराद फराहम करना है. तालीम का हदफ हुरूफ शनासी से आगे बढ़कर
इंसान साजी हो, और ये तब ही मुमकिन था जब बेहतरीन जहनी सलाहियत रखने वाले लोग नई नस्ल के मेमार बनने के लिए अपने आप को पेश करें। सोसाइटी ने मुसम्मम इरादे के साथ अपनी आइडियोलॉजी ये बनाई कि हम हमेशा अपनी नई नस्ल की तामीर और तरबियत के लिए हुनरमंद और साहिब किरदार असातिज़ा का इंतखाबी अमल नहायत ही शफाफियत के साथ अमल में लाएंगे। 1962 से लेकर आज तक सोसाइटी असातिज़ा के इंतखाबात में शफाफियत की नुमायाँ शनाख्त पर कायम है। बारहा मेयारी असातिज़ा की अदम दस्तयाबी पर अखबारात में कई दफ़ा इश्तिहारात दोहराए गए। हुनरमंद, साहिब किरदार और ज़रूरतमंद असातिज़ा की तलाश पर ही इंतखाबात का सिलसिला ख़त्म होता। एक दफ़ा इदारे के मौजूदा सरपरस्त आला के सामने किसी साहब ने असातिज़ा के इंतखाबात के अमल में रकम हासिल करने की तजवीज़ पेश की ताकि तामीरात का काम बआसानी मुकम्मल हो सके। उस वक्त सरपरस्त आला ने बड़ी ही तारीख़ी अल्फाज में फरमाया, आपने कहा, जिस वक्त सोसाइटी को ये एहसास हो जाएगा कि बग़ैर रिश्वत लिए इदारे को जारी नहीं रखा जा सकता, तब स्कूल को ताला लगाकर चाबी मुझे दे देना। हम किसी बुनियाद पर इस तरह का समझौता नहीं कर सकते। यही वजह है कि आज इदारे से वाबस्ता हर मौलम सिद्क़ दिल से पेशे दर्स व तदरीस को एक तहरीक के तौर पर कबूल करता है। तलबा की रूहानी, जिस्मानी और जहनी तरक्की के लिए अनथक मेहनत करने और मोइनुल उलूम से वाबस्तगी को बाइस फ़ख्र समझता है। अल्लाह का फजल करम है कि उसने मुझे इस इदारे में रोज़ी कमाने के मौके बख्शे और मैं बहैसियत मुदर्रिस और बाद में सदर मुदर्रिस तकरीबन 40 साल इस इदारे में अपनी खदमात अंजाम दे चुका हूँ। इदारे के अरकान के साथ मैंने जो तजुर्बात हासिल किए हैं वो बहुत कीमती है। इदारे के तमाम अरकान पेशे तिजारत से वाबस्ता थे, लेकिन अल्लाह का करम है कि मैंने अपनी मुलाजिमत में उन्हें इदारे से कभी माली मुनफ़अत के तलब का ख्वाहिशमंद नहीं पाया। इदारे के अफराद गाहे बगाहे मदरसे के मामलात में दिलचस्पी लेते, दामे दिरमे खदमे सुखने मैंने हमेशा उन्हें मदरसे की तरक्की के लिए पेश पाया। स्टाफ के साथ भी कोई हाकिम व महकूम का मामला नहीं रहा, और सबसे बड़ी बात यह है कि असातिज़ा को मोहतरम समझा गया। मदरसे के इंतज़ाम में अहबाब इक़्तिदार ने कभी कोई दखल अंदाजी नहीं की, मगर अपने नसबुल ऐन को हमेशा अव्वलियत दी। आज भी मौजूदा अरकान अपने बुज़ुर्गों के नक्श कदम पर चलते हुए और उनके नसबुल ऐन को मद्देनज़र रखते हुए पूरी तनदेही के साथ मदरसे की तरक्की में सरगर्म हैं, और स्टाफ भी उनकी रहबरी में बखूबी अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहा है। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये मदरसा यूं ही दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करता रहे, स्टाफ यूं ही अपनी कार फ़राइज़ में मसरूफ़ अमल रहें, और अरकान सोसाइटी और उनके बुज़ुर्गों को अल्लाह ताला सेहत और आफ़ियत के साथ सलामत रखे। आमीन या रब्बुल आलमीन। इदारा अपने अज़ाइम के हुसूल के लिए माहिरीन की रहनुमाई में असातिज़ा की तरबियत साजी और उनकी हौसला अफजाई पर कारबंद है। तलबा की हमा जहत तरक्की हो, वो दौर जदीद के तकाज़ों से न सिर्फ वाकिफ़ हों बल्कि वो अपनी तरजीहात भी तय कर सकें। इस अमल को मुमकिन बनाने के लिए इदारे की जानिब से तलबा को मुसलसल मौक़े फ़राहम किए जाते हैं। तलबा तहज़ीबी व सकाफ़ती प्रोग्रामों के ज़रिए अपनी सलाहियतों और जज्बात को पेश करते हैं। कई ज़हीन तलबा MMS, NTS, स्कॉलरशिप तर्ज के मुसाबक़ती इम्तहानात में नुमाया कारकर्दगी दर्ज करते नज़र आते हैं। मैं मोइनुल से 2003 बैच से फारिग हुआ हूँ। KG से लेकर तो 10 तक
जब स्कूल से हम रवा मतलब आखिरी जब साल ख़त्म हो रहा था तो इस बात का अफसोस था कि यहाँ पे 11-12 जब नहीं था, अगर होता तो शायद हम दूसरे कॉलेज में जाते नहीं। और जब हम कॉलेज गए तो वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमारा स्कूल भी माशाल्लाह बहुत बड़ा स्कूल है, बहुत बड़ा नाम है। और यहाँ पे जो स्कूल के अंदर जो तालीमात जो हासिल की तो उसका हमारे को लाइफ में बहुत फ़ायदा हुआ। क्योंकि मैं CA कर रहा था तो उस वक्त एक तो मैथ्स का बहुत बड़ा सपोर्ट था मुझे, जो मैथ्स के टीचर थे, और उस वजह से जो तो मेरा मैथ्स में जो कमांड था तो मुझे CA में कोई दिक्कत नहीं आई। अल्हम्दुलिल्लाह जब मैं CA पास हुआ तो जो मेरा स्कूल का जो प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का जो उसके अंदर योगदान जिसे कहेंगे वो बहुत ज़्यादा था। मैं मुझे भी समझता हूँ कि मैं ये स्कूल से पढ़ा हूँ। और आखिरी में इतना कहना चाहूँगा कि फूल तो बहुत से है मगर गुलाब सा कोई नहीं, स्कूल तो बहुत से है मगर मेरे स्कूल जैसा कोई नहीं। आई लव माई स्कूल। बेस्ट विशेस फॉर द स्टूडेंट्स, स्टाफ एंड सोसाइटी। कई तलबा खेल के मैदानों में अपने हुनर का लोहा मनवाते दिखाई देते हैं। इदारे में तलबा की किरदार साजी और वालिदैन को तरबियत औलाद के फ़न से आगाह करने की गर्ज से तरबियती नशिस्तों का इनेकाद होता रहता है। अल्हम्दुलिल्लाह आज इदारे की इमारत जुमला 40 कुशादा क्लासरूम्स और एक वसी व अरीज़ मैदान पर मुश्तमिल है, जिसमें गंगा जमनी तहजीब के तकरीबन 5500 तलबा इल्म की दौलत से फैज़याब हो रहे हैं। इस अजीम कार के लिए जुमला 101 असातिज़ा व गैर तदरीसी अफराद अपनी खिदमत पेश कर रहे हैं। अल्लाह का फजल है, बहुत शुक्र है कि मुझे सोसाइटी के 4 सदूर और 4 सेक्रेटरीज़ के साथ काम करने का मौका मिला। मुझे कभी भी कोई तकलीफ़ नहीं हुई। हर काम में मुझे जो है स्कूल के मफाद में जो मैं काम करती थी उसमें मुझे पूरी आज़ादी हासिल थी, चाहे वो तकर्रुरात हों, चाहे कोई स्कूल का फंक्शन हो, निसाबी गैर निसाबी, स्कूल तमाम सोसाइटी के अरकान, इवन सदर और सोसाइटी के सेक्रेटरी वो भी रात के 8-8 बजे तक बैठते थे और प्रोग्राम तय करते थे। इस प्रोग्राम के तैयारी में इस तरह जुट जाते थे, इस तरह मगन हो जाते थे, इस तरह मसरूफ़ हो जाते थे कि जैसे वो स्कूल का नहीं बल्कि उनके अपने घर का प्रोग्राम है। तो ये सब चीज़ें मुझे, और ये तक मैंने देखा है कि हमारे सेक्रेटरी ने स्टेज पर कुर्सियाँ जमाई हैं, वहाँ पर उन्होंने कभी इसका ख्याल नहीं किया कि वो एक सोसाइटी के सेक्रेटरी हैं। हमारी सोसाइटी के जो मेंबरान रहे हैं उनका हमेशा ये मद्दे नज़र रहा है कि मदरसे में तालीम के साथ साथ तरबियत भी हुई, और वो इस जाने बहुत ज़्यादा तवज्जो देते थे और टीचर्स को तवज्जो दिलाते थे। और मुझ 35 साल का अरसा कम नहीं होता, इस दौरान कई वाक़यात हुए हैं, बहुत से मुझे याद हैं, लेकिन मैं सिर्फ आपको हमारी सोसाइटी के मेंबरान की सादगी, सदर की, मतलब सोसाइटी के मेंबरान नहीं बल्कि हमारे सोसाइटी के सदर की सादगी की एक मिसाल मैं आपके सामने पेश करती हूँ। एक वाक़या, हमारे एक टीचर किसी क्लास में पढ़ा रहे थे और बरामदे में से हमारे सोसाइटी के सदर गुजर रहे थे। टीचर ने तदरीस मौक़फ़ की और दरवाजे में आकर सदर सोसाइटी को सलाम किया। उन्होंने जवाब तो दे दिया, ऑफिस में तशरीफ़ ले आए और पीरियड के बाद उन मौल्लिम को बुलाया गया और उनसे ये कहा गया कि भाई हमें सलाम करने की आपको ज़रूरत नहीं, आप के सामने जो बच्चे बैठे हैं आप उनको सलाम कीजिए, क्योंकि वो महशर में आपके दामनगीर रहेंगे। आप उनकी तालीम व तरबियत में, आप उनकी तालीम व तरबियत में ज़रा भी कोताही मत कीजिए। तो आज भी उस सोसाइटी के उन बुज़ुर्गों के तरबियती याफ्ता अफराद सोसाइटी संभाले हुए हैं और उन्हीं के नक्श कदम पर चल रहे हैं और अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं। मैं उन लोगों के ताल्लुक़ से जो गुज़र गए हैं, जो अब भी हैं, जिन्होंने काफ़ी अपना
बेश कीमत वक्त दिया है इस इदारे के लिए, उनके लिए कुछ मिसरे कहूँगी। कुछ ऐसे लोग जो ख़ास बहुत, जो अहम भी हों और प्यारे भी, तारीफ़ में जिनकी लफ्ज़ न हो, तो आम से लफ्ज़ हम क्यों लिखें? कुछ सफ़े, कुछ सतरे, कुछ वरक़ क्यों ना खाली रहने दें और ऐसे प्यारे लोगों को सिर्फ दिल में रहने दें। मैं इदारे के लिए अपनी नेक तमन्नाएँ पेश करती हूँ। खुदा करे ये इदारा दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करे और इस इदारे को हमेशा ऐसे ही सदर, सेक्रेटरी और अरकान खुदा मुहैया करता रहे, ताकि हमारी कौम आगे बढ़ती रहे और खूब से है खूब तर कहाँ की तलाश में रहे और दुनिया की नंबर 1 कौम बन जाए। इदारे को इस मकाम तक पहुँचाने में कई अजीम शख्सियतों ने अपना ताउन पेश किया। इब्तदाई दौर मसाइल का था। इमारत की ज़रूरत कानूनी चाराजोई और इंतज़ामी मसाइल, ज़िम्मेदारान की तदब्बुराना क़ियादत और साबित कदमी ने तमाम मसाइल को बखूबी सुलझा दिया। इदारे की खिदमत को हमेशा मुक़द्दम रखने वाले उन मोहसिन व मुरब्बी रहनुमाओं का नाम मोइनुल उलूम की तारीख़ में हमेशा इज़्ज़त व एहतराम से लिया जाता रहेगा। दूसरे मरहले में इदारे की बागडोर आला तालीम याफ्ता व निहायत संजीदा शख्सियात के हाथों में थी। इन शख्सियात के लिए ओहदे की तफवीज़ कोई मानी नहीं रखती थी। हमेशा मुस्ताद और फ़ाल मेंबर मदरसे के सच्चे कादिम की हैसियत से ताहयात अपनी खिदमत अंजाम देते रहे। जिस कदर वक्त इन हजरात ने इदारे को दिया, बिलाशुबा उसका मुवाजना नहीं किया जा सकता। ये तमाम वो शख्सियात थीं जिनकी हैसियत असलन महमूदाना थी, मगर इन तमाम ने बड़ी ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ अयाज़ाना ज़िंदगी गुजारी। इदारे में हमेशा इन तमाम शख्सियतों को इज़्ज़त व एहतराम के साथ याद किया जाता रहेगा। तेरे एहसास रह रह कर सदा याद आएंगे उनको, तेरे एहसास रह रह कर सदा याद आएंगे उनको, करेंगे ज़िक्र हर मजलिस में दोहराएंगे उनको। इदारे की तरक्की का सफ़र वक्त के साथ रवा दवा रहा। अवलीन सरपरस्तों के अफराद ख़ानदान मौजूदा हाल में अपनी खिदमत दे रहे हैं। अफराद ख़ानदान की नई नस्ल निहायत ही तालीमी याफ्ता हैं। इल्म व ताल्लुम के मैदान में होने वाले इनकलाबी तब्दीलियों पर इन तमाम की बड़ी गहरी नज़र है। ये तमाम ही तालीमी निज़ाम में जिद्दत पसंदी के कायल हैं। इनका मानना है कि जो तालीम हस्ब ज़रूरत ज़माना नहीं, वो फजूल है। जदीद तालीमी नज़रिए के हुसूल के लिए किसी ने इमारत के मसले को हल किया तो किसी ने सेमी इंग्लिश तर्ज तालीम का आगाज़ किया। मदरसे में जदीद तर्ज पर तामीर करदा ई लर्निंग क्लास का क़याम मौजूदा सरपरस्तान व अरकान आमिला की फ़ाल कारकर्दगी और ज़ाती दिलचस्पी की एक नायाब मिसाल पेश करती है। सिल्क मिल्स एजुकेशन सोसाइटी के ज़ेर एहतमाम चलने वाले इदारों पर निगरांकार और हिकमत अमली तय करने की गर्ज से हज़रत ख्वाजा मोइनुल्लाह शाह मेमोरियल ट्रस्ट का वजूद अमल में आया। ट्रस्ट इदारे को मुआशी इमदाद और इमारत की तामीर व तोसी के अहम फरीज़े के साथ दिगर कई फलाही व समाजी काम अंजाम देता है। इदारे ने मुआशरे को कसीर तादाद में उम्दा सलाहियतों के हामिल डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, CA, जंगी सिपाही, असातिज़ा, आर्किटेक्ट्स, वकला फराहम किए हैं। मैंने 2006 में मोइनुल उलूम उर्दू हाई स्कूल से अपनी 10वीं का एग्ज़ाम पास किया था। उसके बाद मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की तालीम मुकम्मल की और होमी भाभा नेशनल इंस्टीट्यूट मुंबई से M.Tech किया न्यूक्लियर इंजीनियरिंग में और फिलहाल मैं भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर मुंबई में बहैसियत साइंटिस्ट के काम कर रहा हूँ। मैंने अपने स्कूल के एजुकेशन से न सिर्फ पढ़ाई हासिल की है बल्कि बहुत सारी ऐसी
सलाहियात और खूबियाँ पाई हैं जिन्होंने मुझे न सिर्फ अपने करियर में बल्कि ज़िंदगी के हर शोबे में बहुत सारी मदद की है, जैसे कि नज़्म ज़ब्त, क्रिएटिविटी, अ सेंस ऑफ कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोसाइटी और ख़ुद एतमादी, जिसके लिए मैं अपने असातिज़ा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मैंने अपने स्कूल में सिर्फ तालीम नहीं हासिल की बल्कि ये सीखा है कि तालीम किस तरह से हासिल की जानी चाहिए और किस तरह से हासिल की जाती है, जिसके लिए मैं अपने तमाम असातिज़ा का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। मोइन उलूम उर्दू हाई स्कूल गुज़िश्ता लगभग 50 सालों से मुल्क व मिल्लत की खिदमत की तालीमी खिदमत अंजाम दे रहा है और मैं तमाम असातिज़ा और अरकान सोसाइटी को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और मैं ये दुआ करता हूँ कि रोशन रहे इलाही ये शम्मा इल्म फ़न की, रोशन रहे इलाही ये शम्मा इल्म फ़न की, महके हज़ार गुंचे रौनक रहे चमन की, ये हंसता चमन फूलों का वतन यूं ही शाद रहे आबाद रहे। अल्लाह हाफ़िज़। I'm working on various softwares of defense state organizations like Raksha Bhumi, data capture system, hiring and acquisition software, accrual based accounting system, which are being used all over India. Basically, I'm from Aurangabad. I have completed my first to 10 from Moin Ulum High School. 11 to 12, Maulana Azad College. After that, I completed my engineering from Government Engineering College, Aurangabad. और साथ ही साथ अपने एक ही स्कूल में सेमी इंग्लिश भी है, उर्दू है और मराठी है, इतने सारे मीडियम का हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं स्कूल से, वो बहुत बड़ी बात है और मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि मैं इस स्कूल का हिस्सा रह चुका हूँ। तो मैं स्टूडेंट से यही कहना चाहता हूँ कि वो अपनी स्टडी जो है उस पर ध्यान दे, अपने टीचर्स की, अपने मॉम डैड की, अपने घर वालों की, अपने स्कूल की इज्जत करें। खुदा हाफिज़ एंड बेस्ट ऑफ लक टू ऑल। थैंक यू। सोसाइटी का अमल इजहार बयान से ज़्यादा कायल करने वाला है। इदारे के सरपरस्तों का खुलूस, स्कूल के तई मोहब्बत इदारे का गराक़द्र सरमाया है। इदारे की बुनियाद से आज तक तमाम ही शख्सियात ने बड़े ही खैर खूबी से इदारे की तरक्की के लिए अपनी सलाहियतों का इस्तेमाल किया। मौजूदा अरकान आमिला व मेंबरान बड़े ही सब्र व तहम्मुल, नेक नियति और अपने बुज़ुर्गों की मीरास के साथ इदारे को तरक्की की सिमत रवा दवा करने में कोशा हैं। मोइन उलूम फैमिली से वाबस्ता वो तमाम गराक़द्र शख्सियतें जो दारफ़ानी से कूच कर चुके हैं, इन तमाम के हक़ में तलबा और असातिज़ा दुआ गो हैं। ऐ रब्बुल आलमीन, इन तमाम को इदारे और इंसानियत की फ़लाह व बहबूद के लिए की गई काविशों का बेहतरीन अजर अता फरमा। आमीन। अल्लाह ताला मौजूदा सरपरस्तान सोसाइटी, अरकान व मुखलिसीन इदारा की जिस्मानी व रूहानी सेहत के साथ उम्र दराज करे। इन तमाम की रहबरी में इदारे को खूब उरूज हासिल हो। आमीन। इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्ब परेशान को, इस दौर की जुल्मत में हर क़ल्ब परेशान को वो दाग़ मोहब्बत दे जो चांद को शर्मा दे।